نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب، امید کرتے ہیں کہ تمام دوست بزرگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا مالک اللہ آپ سے ہمیشہ راضی رہے، رب تعالیٰ کی ذات آپ کی علم و فضل عمر میں برکتیں عطا فرمائے، مالک مولا دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، رب تعالیٰ کی ذات کامیابیوں کامرانی اور عزتوں سے نوازے، میرا مالک اللہ آپ سے راضی ہو۔ جی سامعین اور ناظرین، آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آدھا کلو روغن زرد گائے کا دودھ اپنا گھی لینا ہے اور ایک کڑاہی لینی ہے تانبے کی یا تانبے کا برتن لینا ہے۔ تو آپ نے وہ روغن زرد تانبے کے برتن کے اندر یا کڑاہی کے اندر ڈال لینا ہے۔ ایک پاؤ دیسی لہسن سرخ والا چھیل کے یا بمے چھلکا ہی اس کے اندر آپ نے ہلکی ہلکی آگ پر جلانا ہے تاکہ وہ جل جائے۔ جب آپ کا ایک پاؤ یہ لہسن اچھے طریقے کے ساتھ جل جائے تو اس کے بعد آپ نے رتن جو آدھا پاؤ اس کے اندر ڈالنا، پھر اس کو بھی نرم نرم آپ نے پکانا ہے اس روغن زرد کو تاکہ یہ جل جائے، رتن جو اس کے اندر آپ نے ڈالی ہے۔ جب اب یہ تمام جل جائے تو اس روغن کو آپ چھان لیں، صاف کر لیں، اس کو علیحدہ رکھ لیں۔ اب آپ اپنی وہ جو برتن ہے آپ کا تانبے کا کڑاہی، اس کو آپ صاف کر لیں، یا کٹورا تانبے کا جو بھی آپ تانبے کا برتن استعمال کر رہے ہیں اس کو صاف کر لیں بے سے کوئی اس کے اندر کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو۔ اب آپ نے گائے کا دودھ، شیر گائے آپ نے لینا ہے، 2 کلو آپ اپنے پاس رکھ لیں، آدھا کلو تانبے کے ہی برتن میں علیحدہ آپ دودھ ڈال لیں اور باقی کا اپنے پاس ویسے محفوظ رکھ لیں۔ اب میرے محترم یہاں پہ دوست پوچھیں گے بھی دودھ بوائل کیا ہوا ہو یا ایسے ہی، تو آپ نے ایسے ہی لینا، اس کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے میرے محترم۔ اب جناب محترم جو آپ نے روغن زرد بنا کر رکھ لیا اپنے پاس، وہ گھی جس کے اندر آپ نے رتن جوت اور لہسن جو ہے دیسی سرخ وہ آپ نے جلایا ہوا ہے، چھانا ہوا، وہاں سے ایک سٹانک اس تانبے کی کڑاہی یا برتن کے اندر آپ ڈالیں اور 1 کلو گندک آملہ سار اس کے اندر آپ ڈال دیں اور بالکل زیرو لیول پر بھی اس کو آپ چولہے کو چلا دیں تاکہ یہ آپ کی گندک جو ہے یہ میلٹ ہو سکے۔ جی میرے محترم، جب یہ آپ کی گندک میلٹ ہو جائے تو آپ بے حفاظت اس کو وہ آدھا کلو دودھ جو آپ نے دوسرے تانبے کے برتن کے اندر رکھا ہوا ہے اس کے اندر اونڈین دیں، تھوڑی دیر انتظار کریں، گندک نیچے جم جائے گی تو پھر بے حفاظت اس گندک کو نکالیں اور کڑاہی پھر چولہے پہ رکھیں جو پہلے والا آپ کا تانبے کا برتن اوپر رکھا ہوا تھا۔ تو اب تھوڑا سا اس کے اندر 1 چمچ آپ روغن زرد پھر ڈالیں اور یہ اپنی گندک اس کے اندر ڈالیں اور زیرو فلیم پر اپنا چولہا چلائیں تاکہ گندک میلٹ ہو جائے۔ میرے محترم پھر اس کو جب یہ میلٹ ہو جائے تو پھر اس دودھ کے اندر آپ نے اس کو بچھاوا دے دینا، 10 بچھاوے آپ نے اس دودھ کے اندر دینے ہیں، پھر آپ نے دودھ چینج کر لینا ہے، تبدیل کر دینا۔ جی میرے محترم، اب یہ ہوگا کہ یہ جو 1 کلو آپ کی گندک ہے اس کو کل 40 بجھاوے آئیں گے آپ کے دودھ جو آپ نے یعنی گائے کا دودھ اپنے پاس رکھا ہے اس کے اندر جو تانبے کے برتن میں ڈالا ہوا دودھ ہے، آدھا کلو کر کے ہر آدھا کلو دودھ میں 10 بجھاوے ہیں اور 40 بجھاوے ہوں گے، 2 کلو دودھ ہوگا۔ اب جب 40 بجھاوے مکمل ہو جائیں تو یہ آپ کی گندک جو ہے اس کو آپ دیکھیں گے گہرے مہرون کلر کی ہوگی، اس کو کپڑے کے ساتھ آپ اچھے طریقے کے ساتھ اس کو جناب جمنے پر یہ دیکھیں گے تو ایک ٹھپا سا بنا ہوگا، اس کو صاف ستھرا کر لیں تاکہ اس کے اندر اوپر سے یہ دودھ وغیرہ اتر جائے اور اس کو کسی اخبار کے اوپر رکھ کے آپ دھوپ میں رکھ لیں جناب اچھے طریقے سے۔ آپ میرے محترم کیا آپ نے کرنا ہے، اس گندک کا استعمال کیسے ہم نے کرنا ہے، اس گندک سے آپ پاؤ گندک لے لیں یا آدھا کلو گندک لے لیں، جتنی آپ کے پاس گندک ہے اتنا ہی جمال گھوٹے کے بیج آپ کے پاس ہو، جمال گھوٹے کے بیج ان کو آپ جناب اچھے طریقے کے ساتھ کوٹ لیں، باریک کر لیں، پھر جناب محترم اس گندک کو باریک کر لیں اور ان کو اس کے اندر کھل کر دیں، اس گندک کے اندر ان دونوں کو یعنی اچھے طریقے کے ساتھ آپ کھلائی کریں، کوشش یہ کریں کہ وہ جو تانبے کی آپ کی کڑاہی ہے نا اس کے اندر اس کو کھل کر دیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک نیلا کی ڈلی لینی ہے، عمدہ قسم کی زبردست قسم کی ایک ڈلی لے لیں، 3 تولہ کی 3 تولہ کی نیلا کی اچھے والی ڈلی لے لیں،
इसको अगर दोस्त मुसाफा करते भी हैं तो कर सकते हैं। जिस तरह मारूफ तरीका है कि छाछ के अंदर या दही के अंदर इसको रख देते हैं 3 घंटा 4 घंटा, तो वहां से बस आप निकाल के इसको साफ सुथरा करना है। अब आपने सिमल फार सफ़ेद लेना है। अब दोस्त पूछेंगे यहाँ पे जनाब कानी सिमल फार लगेगा या बलौरी होगा? ये आम सिंपल सादा सिमल फार जो भी आपको सफ़ेद मिल जाता है सिमल फार वो ले लें, इसको पीस लें। 7 तोले या 6 तोले आपका सिमल फार होगा। सफ़ेद धतूरे का आपने नुकदा बनाना है। इसके पत्ते लें, इसके जनाब डोडे भी लें, जिसके अंदर बीज होते हैं वो कच्ची हालत में आप ले लें, इसके फूल भी ले लें। इनको कूट लें। आधा किलो कम से कम ये नुकदा हो। 1 पाव मट्टी के कुजा के अंदर नीचे ये नुकदा रख लें, और बाकी का नुकदा जो है जनाब मोहतरम आपने ऊपर देना है। इसके दरमियान में हमने करना क्या है कि ये सिमल फार जो पीसा हुआ है ये आधा निसफ उस नुकदा के ऊपर बिछाना है, जो हमने हंडिया के अंदर या कुजा के अंदर रखा है, जो मिट्टी का कुजा होता है। तो उसके अंदर नुकदे के ऊपर आधा सिमल फार पीसा हुआ बिछाएं, इसके ऊपर नीला की डली रखें, ऊपर सिमल फार दे दें। आप ऊपर आप 1 पाव फिर नुकदा ये रख दें आपके धतूरा सफ़ेद का जो है। अब इसको अच्छे तरीके के साथ ना गिल कर लें, इस कुजा को, इस कुजा को, इस मिट्टी की जो डोली है जो हंडिया आपने ली है, ठीक है जी। इसको अच्छे तरीके से गिल हिकमत कर लें। जब अच्छी गिल हो जाए तो इसको जनाब मोहतरम आप 7 किलो 8 किलो उपलों की 7 से 8 किलो उपलों की आग दे दें। बाद सर्द होने के बेहिफाजत इसको खोलें और चिमटी आप अपने पास रख लें। ये जो आपका मरकब पीछे गंधक का जमाल घोटे का खरलाई किया हुआ कढ़ाई के अंदर है वो अपने पास कढ़ाई उधर रख लें, और जो ही आप हंडिया के अंदर से वो नीला चिमटी के साथ पकड़ के निकालते हैं वहां पे आपको जबरदस्त किस्म का नीला मिलेगा, डली होगा। इसको उठाएं, फौरी उसके अंदर डाल दें और खरलाई कर लें। अब पताल जंतर का आपके पास वो रोगनी हंडिया के अंदर जैसे सुराख किया होता है, सुराख किया हुआ, और उसके अंदर 1 प्याली औंधी दे दें, ठीक है। और गड्ढे में नीचे आप अपना बर्तन या अपना बीकर रख सकते हैं या बड़ा प्याला रख सकते हैं। हंडिया बेहिफाजत अपने उस चूल्हा के ऊपर उस गड्ढे के ऊपर उसको रखें, और ऊपर सरपोश उसका ऊपर ढकना रखें, और इसको अच्छे तरीके के साथ गीली हिकमत करें। गीली हिकमत जब हो जाए तो इसको 35 किलो या 40 किलो तक, 30 से 35 40 तक आप इसको आग दे दें। सुबह जब आप इसको देखें, यानी शाम के वक्त आग देते हैं, तो सुबह देखेंगे इंशाल्लाह जब राख वगैरह सर्द हो जाए, ठंडी हो जाए, तो राख को ऊपर से अलग कर दें। अपनी हंडिया जिसके अंदर ये आपने मवाद रखा है उसका ढकना खोल के चेक करें, बिल्कुल मवाद जो है जनाब जल चुका होगा। उसको अलहदा करें, बेहिफाजत हंडिया ऊपर से उठाएं, नीचे आपका जनाब तेल होगा। इस तेल को आप जब अलहदा करेंगे तो आपको इस तेल के अंदर से कुछ गंधक जमी हुई नीचे बरामद होगी। वो गंधक आप उठा लें, उसको कपड़े के साथ साफ सुथरा कर लें और महफूज करके अपने पास रख लें। अब हमने इसको तरीका क्या किस जगह पे इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कीमिया के अकॉर्डिंग। जी बिस्मिल्लाह, आ जाते हैं हम जी। इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है, अगला अमल है उस अमल की तरफ। आपने मेरे मोहतरम तांबे के मुसफ़ा पतरे लेने हैं, साफ किए हुए पतरे ले लें जितना आपका दिल करे। 5 तोले ले लें, 10 तोला ले लें, 5 पतरे लें, 4 पतरा लें, जितने मर्जी हो। एनीवन इससे ज्यादा मोटे ताजे ना हो, 1 सूत्र से भी कम हो, आधा सूत्र या इससे भी बारीक हो तो जबरदस्त रहेगा। ये पतरे यानी जैसे ये तांबे की प्लेटें होती है ना, जो किसी पतीली या किसी देगचे का ढकना होता है, तो इस तरीके की प्लेटें सी बाजार में से मिल जाती हैं, सुनार से मिल जाती हैं, आप ले लें। वहां से मजीद उसका पत्थर बनवा सकते हैं थोड़ा बारीक, यानी आधे सूत्र तक हो, उससे भी कम हो जाए तब भी ठीक है, आधे सूत्र तक चल सकता है, 1 सूत्र का भी चलेगा, कोई मसला नहीं, नो इशू। अब मेरे मोहतरम आपने वो जो तेल गंधक का निकाला है, इन पत्थरों को लगाकर ऐसे ओपन एक ओपले के ऊपर ये सारे पतरे ऐसे बड़े उपले के ऊपर ऐसे बिछा दें, या 2 उपलों के ऊपर बिछा दें। 4-5 किलो उपले नीचे रखें, ऊपर ये वाले उपले रख दें जिसके ऊपर आपने पतरे रखे हैं, इनके ऊपर फिर उपले रख दें ताकि ये ऊपर से छुप जाए। बाकी के उपले खुले ही ऐसे जोड़ दें, 40-50 उपले रख लें, बस काफ़ी हैं। मट्टी का तेल ऊपर छिड़क के आग लगा दें। तो जनाब सर्द होने पर आप मुशाहिदा कीजिएगा कि ये पतरे कैसे हैं। फिर आपने दोबारा से इन पत्थरों को तेल लगाना है। कम भी उपले आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये शर्त नहीं है कि 40-50 हो,
20 उपले, 15 उपले, 10 उपले भी चल जाएंगे, नो इशू, कोई इशू नहीं है इसमें, मुझे कोई इतराज नहीं, 10 उपले में भी आप करेंगे तो ये होगा। ठीक है मेरे मोहतरम, इसी तरीके से फिर दोबारा तेल लगाएं, फिर उपलों के अंदर इनको ऐसे खुला ही रख के 10 एक उपले हों तो आप फिर मिट्टी का तेल लगा ऊपर डाल के आग लगा दें, सुलगा दें। ठीक है जी। अब इन पत्थरों को अपने पास महफूज रख लें। अब आ जाते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। जो आपने वो गंधक जो आपको बीच में से मिली है ना तेल के अंदर, उसका हमने क्या करना है। 1 तोला वो वाली गंधक ले लें, 1 तोला आप अच्छी क्वालिटी का अपना पारा ले लें। ठीक है जी। आपकी खिदमत में एक पारा भी पेश कर देंगे। ठीक है जी, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या एनी वन, बड़े उस्ताद मेरे फ़न है, आप काफ़ी अरसा दराज से दोस्त आप इस चीज़ में वर्क कर रहे हैं। जो भी आपका अच्छा पारा हो, मजबूत पारा हो, ज़बरदस्त पारा हो, जैसा भी ज़बरदस्त पारा हो, ठीक है जी, कोई भी आप बना सकते हैं। चाहे वो उसको आपने कोई धातें खिला के उसको जारन पाचन किया हो तब भी चलेगा, और उसके अलावा जो आपने रोगन निशादर के अंदर या यानी मन भूखा पारा या उसको कोई शमस का वर्क आपने जनाबी वाला इस्तेमाल करवाया, उसको हजम करवाया या जारन पाचन किया हुआ, यानी शमस का वर्क आपने ज़रूर अपने पारा को देना है। तो वो पारा 1 तोला ये गंधक इनके अच्छे तरीके के साथ जनाब कजली बनानी है। कजली बनाने के बाद इमामा वाली कुजियाँ मिलती हैं, उसके ढिकने भी होते हैं। उस ढिकने के अंदर इसको रख के दूसरा ढिकना ऊपर दे देना है। पहले ढिकने के लफ्ज आपने व्यवस्थित कर लेने हैं, उनको रगड़ के बराबर कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई खला ना हो। क्यों जनाब, डॉक्टर की जो कॉटन मिलती है पट्टी, वो कपड़े मिट्टी इसको लगानी है अच्छे तरीके के साथ। इसकी एक ऐसे करके आपने बना लेनी है, जैसे ये जैसे गिले मत करते हैं इसको अच्छे तरीके से ऊपर से नीचे से चारों जानब से इसको यानी गिले मत लगा लेनी है। आप जनाब मोहतरम आप आधा किलो से 3 पाव उपले बरीक कर लें। नीचे अपनी ये जमीन के ऊपर रखे, बाकी उपले सारे इसके ऊपर ये चुन दें। ठीक है, चूड़ा मिट्टी का तेल ऊपर थोड़ा सा छिड़क के इसके सरे के ऊपर गुम्बद नमा यानी आपने ये बनाना है, ऊपर आग जला दें। सर्द होने पर जनाब मोहतरम आप इसको देखें, अगर शाम को आग देते हैं तो सुबह देखेंगे तो इंशाल्लाह लजीज ठंडा होने पर आप इसको निकालें, आपको संदूर मिलेगा। तोल लें जनाब संदूर को, जितना आपका पारा है 12 ग्राम है 10 ग्राम है तो इतना ही मिलेगा। गंधक आपकी रफू चक्कर हो जाएगी और ये संदूर आपको मिलेगा पारे का, बा वजन होगा। और इसके ऊपर जनाब मोहतरम आप देखेंगे जैसे ये सिल्वर का कलर होता है ना चांदी का, ऐसी छोटी छोटी ऊपर आपको ये पिपड़ियां सी बनी हुई ये पत्रियां सी आपको नजर आएंगी। ठीक है मेरे मोहतरम, ये आपका संदूर है, इसको आपने महफूज करके अपने पास रख लेना। अब आ जाते हैं वापस नेक्स्ट उसी प्रोसीजर के ऊपर, जो आपके तांबे के पत्ते रहे उनका करना क्या है। जी बिस्मिल्लाह। अब हम आ जाते हैं जनाब तांबे के पत्थरों के ऊपर, जो हमने जिनको गंदे का तेल लगा के और 20-20 या 30-30 या 10-10 उपलों के अंदर बनाया था, वो वाले पत्थरे उठा लेने हैं। अरके गुलाब आप खुद निकाल लें या आप किसी इतमाद वाले बंदे से 1 लीटर अरके गुलाब ले लें। ये बाजार में आपको केमिकल की शॉप से, जहाँ पे रंगों वाली दुकानें होती हैं, वहां से ना नील मिलेगा, डली वाला नील लेना है। डले वाला नील ले लें, 100 ग्राम नील ले लें, उसको पीस कर उस अरके गुलाब के अंदर आप मिक्स कर दें। अब जनाब मोहतरम अपने तांबे के पत्थर उठाएं और कोयले जला लें, वो चूल्हा जला लें, उनको ना गर्म करें। जब वो कोयले की मानद देखने लग जाए तो उसके अंदर बुझावा दें, वो नील वाला जो अरके गुलाब आपका बना हुआ है उसके अंदर बस ऐसे बुझावे देते जाएं तो आपका तमाम तांबा इसके अंदर ना सुर्ख रंग का नीचे बठूर बैठना शुरू हो जाएगी। ऊपर से इसके ना ये काट काट के तांबा नीचे आता रहेगा इस अरक के अंदर। तो इस तरीके से आपने इस तांबे को काटना है, जितना भी आपको एनीवन चाहिए बना के आप काट के रख सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये तांबा जो सुर्ख हमें मिला, इसका करना क्या है कि ऊपर से फिर आपने इस अरके गुलाब को उतार देना है और नीचे से आपको जो तांबा बरामद होगा सुर्ख कलर का, तो इसको मेरे मोहतरम आपने खुश्क कर लेना धूप में। जनाब मोहतरम ये जब खुश्क हो जाए तो आपने देसी या असील अंडा लेना है मुर्गी का, तो उसको ऊपर थोड़ा जिधर से वो उसकी साइड बारीक होती है उधर से सुराख करके इसकी सफेदी और जर्दी बाहर निकाल दें। ठीक है जी। जब वो निकल जाए तो इसको 1-2-4 मिनट का स्टे दे दें ताकि अच्छे तरीके के साथ बीच में से साफ हो जाए। अब इसके अंदर 1 तोला आपने रस कपूर डालना है, पर उससे पहले ये जो आपका तांबा है ना, इसकी 2 चुटकियां उस अंडे के अंदर आपने डाल। ठीक है जी, 2 चुटकियां 3 चुटकियां उसके अंदर आपने डाल दी। समझ लो वो नीचे थोड़ा सा बिछ गया, उसके ऊपर आप अपना एक रस कपूर तोला एक डली रखें और 3-4 चुटकियां ऐसे आपको क्या समझ आएगी,
मिसाल के तौर पे आप ऐसा करें कि आधा ग्राम ऊपर नीचे कर दें, ठीक है जी। चिमटी की मदद के साथ अंदर रस को रख के बाकी का ऊपर दे दें। दूसरा अंडे का खोल इसके ऊपर देकर दाल माश लें, उसको बारीक पाउडर करें, फिर उसका जनाब मोहतरम ये डालें उसके अंदर, मतार का दूध डाल के ना इसको गूंद लें अच्छे तरीके के साथ। जब इसके अंदर लेस पैदा हो जाए, अच्छी लेस पैदा हो जाए, तो इसको आप अपने वो जो आपका अंडा है जिसके अंदर रस कपूर आपने जनाब मोहतरम दाखिल किया, सॉरी यानी मुर्गी का अंडा जिसके अंदर आपने रस कपूर दाखिल किया हुआ है, हिफाजत एक एक इंच ये उसके ऊपर आपने इसको लगा देना है, और इसको बड़े प्यार के साथ इसका सिरा ऊपर वाली जाने भी रहे मुंह यानी जिधर से सुराख था, इसको खुश्क कर लें। खुश्क होने के बाद इलसी का तेल आप खुद निकलवा लें जनाब मोहतरम, अपने हाथों से निकलवाया हुआ तेल हो 2-1 लीटर। अब तारों के साथ इसको इस तरीके से इसको बांधना है कि ये उस तेल के अंदर 1-2 इंच डूबा रहे, बस इसको खूब पकाना। इसको पकाते रहे, नरम नरम पहले पकाएं जनाब मोहतरम, बिल्कुल नरम पकाते रहे कि तेल गर्म हो जाए, हल्का हल्का वो पकना शुरू हो जाए, उसके अंदर इसको पकाते रहे। पूरे 12 घंटे आपने इसको पकाना। बस जो ही 12 घंटे हो जाए तो इसको निकाल लें बेहिफाजत। ये आपने लेप जो बनाना ना, इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी, बड़े अच्छे तरीके के साथ इसको आपने खुश्क भी करना है, फिर उसके अंदर आपने इसको पकाना है। ले मेरे मोहतरम बेहिफाजत इसको खोलेंगे, हिफाजत नीचे कोई चीनी का प्याला रख ले, कोई ड्रिल को वर्मा कोई ऐसी चीज उसके साथ इसके अंदर सुराख करके ऊपर से फिर अपना वो किसी चीज के साथ काट के ना, वो जो ऊपर आपने लगाया हुआ आटा दाल माश का, वो आप उसको ठीक करें, नीचे बर्तन भी रख लें। अल्लाह पाक की ज़ात खैर फरमाएगी। अब आपके पास ये एक चीज है, एक आपके पास संदूर है पारे का, और वो भी बाकी आपके पास महफूज है। मेरा मालिक अल्लाह आपको इसमें आसानियां पैदा करे, रब की ज़ात इंशाअल्लाह ये मेरे हाथ का किया हुआ है, ये सारा मामला होगा, ये कीमिया मुकम्मल है। आप आगे आप समझदार हैं, इसको किस टेक्निक के साथ उस संदूर को क्या करना है, क्या नहीं करना है, मोम करना है या जो करना है, या उसका भी तेल बनाना है या क्या करना है, ये आपके सामने है। खतकश बना सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, ये आपके सामने है मेरे मोहतरम। जहाँ तक ये जसारत में कर सकता था, मैंने आपके साथ ये ताउन किया, आप मेरे भाई हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा जी, ये अमराज खबीसा में तेल इस्तेमाल होगा, काफ़ी अमराज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फलबेरी जो कोड़ होते हैं, बर्ज होते हैं, उसके अंदर भी आप इसका एक एक कतरा मक्खन के अंदर रख के रोगनी गज़ा पराठा खुश्क यानी रोटी उसके चूरी बना के खानी है, दूध घी का सेवन करना है, वो मरीज भी इसके साथ ठीक होंगे। इसके अलावा कीमियागर भाई भी अपना इस पे गौर फिक्र करके काम निकाल सकते हैं। तो वो पारा जनाब मोहतरम उसको खल तशवीया देकर उसका भी ज़बरदस्त हो सकता है, या इसी तेल के अंदर भी अगर, यानी मैं आपको सिर्फ एक नुक्ते से बता रहा हूँ, आगे जैसे भी आपकी अकल समझ हो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी तमाम खून की बीमारियों के ऊपर पारा आपका काम करता है। और वो जनाब ऐसे समझ लें, मान लो ये सुरख संदूर है जिसे देखने वाले देखते हैं और समझने वाले समझ सकते हैं। बात करने में बड़ी लंबी होगी, इसके लिए माजरत है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका छोटा भाई सैयद नसर अब्बास नकवी बुखारी, जज़ाकल्लाह। अब आ जाते हैं जनाब वो जो आपका दूध बचा था दोस्त। अब आप पूछेंगे या कहेंगे उस दूध का क्या करना है। उस दूध को जामन लगा दें मेरे मोहतरम, उसको गर्म कर लेना अच्छे तरीके के साथ, उसके बाद उसको जामन लगाएं, खट्टा लगाएं, उसका छाछ बना लें यानी दही बनाएं, फिर उसको रिड़क कर जनाब मोहतरम उसके अंदर से आप अपना रोगन निकालें। उसको फिर आप पक्का भी कर सकते हैं, कच्चा भी यूज कर सकते हैं, खारिश के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जहाँ जहाँ आपका दिल चाहे वहां पे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। और वो मुसफ़ा खून भी है, मरीजों को भी आप दे सकते हैं खाने के बाद 1 चम्मच से आधा चम्मच, आधे चम्मच से 1 चम्मच तक, ठीक है जी। दूध में मिला के गर्म दूध के साथ भी दे सकते हैं, ज़बरदस्त इसके फायदे होंगे, ठीक है जी। आपका वो दूध भी जो 2 किलो था वो भी बाकी का वेस्टेज नहीं जाएगा, जितना भी उसके अंदर से रोगन निकल आए। और वो छाछ वगैरह जो है वो आप अपने किसी फलाद जो बना रहे हैं तो उस फलाद के अंदर आप यानी आप डाल लें, मर्तबान के अंदर जो आपने फलाद डाला हुआ उसके अंदर वो लस्सी जो बनेगी छाछ वो उसके अंदर डाल लें, ठीक है जी। और बाकी जो आपकी मक्खन निकलेगा उसका चाहे आप पक्का घी बना लें, उसके अंदर नीम की पत्तियां आप जला लें, ठीक है जी। वो जितना हो पाव हो तो 1 स्टाक नीम की पत्तियां जला लें और छान कर रख लें। ले जनाब ये भी खून के अमराज में दें, इंशाअल्लाह खारिश वालों को लगाएं,
ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ.